جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بر صغیر ہند و پاک پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار عنایتیں ہیں، اور انہی عنایتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس سرزمین پر کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے پیدا ہوئے ہیں۔ ان اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی بدولت ہی مختلف ادوار میں بر صغیر ہند و پاک میں دین اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا رہا۔ انہی اولیاء اللہ میں حضرت اعلیٰ سیدنا محمد فاضل الدین ابو الفرا گیلانی قادری رضوان اللہ علیہ بھی ہوئے ہیں، جو کہ ایک عظیم المرتبت ولی اللہ تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ 1684 عیسوی تا 1739 عیسوی آستانہ دربار قادریہ فاضلیہ محلہ میاں صاحب بٹالہ شریف پنجاب انڈیا کے سجادہ نشین رہے۔ اسے اپنی خوش بختی نہ کہوں تو کیا کہوں کہ گزشتہ دنوں دربار حضا پر حاضری دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یقین جانیے کہ آستانہ مبارک پر حاضری دے کر دلی سکون میسر ہوا۔ آستانہ شریف میں آپ رحمت اللہ علیہ کے خاندان ہی کے لگ بھگ 1 درجن سے زائد اولیاء اللہ جو آپ کے بعد دربار پر سجادہ نشین رہے کے مقبرے و مزارات بھی ہیں۔ باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت اعلیٰ سیدنا محمد فاضل الدین ابو الفرا گیلانی قادری رحمت اللہ علیہ کا شجرہ نسب مبارک پیران پیر حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی البغدادی سے ملتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے بھتیجے پیر سید غلام علی شاہ عرف ٹبے والی سرکار، ان کی اولاد اور دیگر لواحقین 1219 ہجری میں بٹالہ سے ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے تھے۔ پاکستان میں مقیم آپ رحمت اللہ علیہ کے عزیز و اقارب میں سے میرا رابطہ حضرت قبلہ پیر سید فاروق محی الدین گیلانی صاحب سے ہوا، جو کہ سیدنا محمد فاضل الدین ابو الفرا گیلانی قادری رحمت اللہ علیہ کے ہی خاندان کا خون اور چشم چراغ ہیں۔ موصوف آستانہ دربار عالیہ قادریہ گوسیہ شہباز پور پاکستان کے سجادہ نشین ہے، جو کہ ان کے دادا اور والد بزرگوار کا آستانہ مبارک ہے۔ پیر سید فاروق محی الدین گیلانی صاحب کے بزرگوار بھی اللہ تعالیٰ کے کامل ولیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ موصوف لگ بھگ 2 سال قبل ویزے پر جموں میں تشریف لائے تھے کہ اس دوران ملاقات کا شرف نصیب ہوا۔ صاحب موصوف سے منعقد ہوئے ایک انٹرویو کے اقتباسات ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت نصیب کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ سامعین و ناظرین محظوظ ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں قبلہ پیر سید فاروق محی الدین گیلانی شہباز پوری۔ فاروق صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا پورا اسم گرامی کیا ہے؟ السلام علیکم، میرا مکمل نام سید فاروق محی الدین گیلانی ہے۔ جب میرے نانا جان کا وصال ہو رہا تھا نا، تو اس وقت انہوں نے مجھے اپنے گلے لگایا اور میرا نام فاروق رکھا، اور والد صاحب نے میرا نام محی الدین رکھا۔ اس لیے میرا آدھا نام نانا جان اور آدھا نام والد صاحب کی طرف سے رکھا گیا ہے، اس لیے میرا مکمل نام سید فاروق محی الدین گیلانی پڑا۔ اور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے خانوادہ سے ہونے کی وجہ سے گیلانی جو ہے نا وہ کنیت پڑی ہے میری۔ فاروق صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اپنے والد محترم اور دادا بزرگوار کا اسم گرامی بتائیں۔ والد صاحب کا پورا نام سید بدر محی الدین گیلانی، دادا جان کا پورا نام سید شاہ سوار شاہ گیلانی ہے۔ فاروق صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی تاریخ اور جائے پیدائش کیا ہے؟ میری پیدائش 27 جنوری 1992 بروز جمعرات کو گجرات میں ہوئی تھی، پاکستان میں۔ سماجیات یوٹیوب چینل کی ویڈیوز کو دیکھیں، لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو کے نیچے دی گئی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کے پاس نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے۔ پیر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا اور ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم آپ نے کہاں سے مکمل کی ہے؟ میرا بچپن جو ہے نا گجرات اور شہباز پور میں گزرا ہے۔ عربی کی تعلیم میں نے 8ویں جماعت میں
कारी हनीफ जलालपुरी साहब थे, उनसे हासिल की। मैट्रिक जलालपुर जट्टा से, FA और BA ऑनर्स मैंने मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर से, शातुसानिया शातुल आलिया मिनहाजुल शरिया कॉलेज लाहौर से प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारिक कादरी साहब से की, और मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर से मैंने BS ऑनर किया। इसके बाद MPhil करने लगा था, फिर वालिद साहब जो हैं उनकी डेथ हो गई, इस वजह से मुझे MPhil छोड़ना पड़ा। तो 2008 से 2014 तक जो है ना, इस दौरान मैंने लाहौर में तालीम हासिल की है। फारूक साहब, आप जिस आस्ताना मुबारक के सजादा नशीन है उसका मुकम्मल नाम बताइए। आस्ताना शरीफ का नाम आस्ताना आलिया कादरिया गौसिया शहबाजपुर शरीफ, तहसील ज़िला गुजरात, पाकिस्तान है। फारूक साहब, मेरा अगला आपसे ये सवाल है कि अकीदा अहले सुन्नत का क्या मफहूम है और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों को क्या करना चाहिए? अकीदा अहले सुन्नत जो है उसके बारे में मेरा जो ख़ास तौर पे अकीदा ये है कि हम सहाबा कराम अहले बैत तहार सरकार 2000 उले कराम ताबीन तबा ताबीन सब के साथ अकीदो मोहब्बत का इज़हार रखते हैं, किसी पर लान तान नहीं करते। तारीख़ के जो वाक़यात हुए हैं उन पे हम खामोशी इख्तियार करते हैं। हमारा ये भी अकीदा है कि अहले बैत तहार सहाबा कराम उलिया कराम ये 3 ऐसी कड़ियाँ हैं जिनके साथ निस्बत रख के हम अल्लाह ताला की बारगाह में जो है ना वो क्या कहते हैं पहुँच सकते हैं। इनमें से अगर किसी को भी जुदा कर दिया जाए तो दीन की सीधी राह पर हम चल नहीं सकते बल्कि भटक जाएंगे। इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि जब तक हमारा अकीदा बेहतर नहीं होगा, हमारी सोच बेहतर नहीं होगी, तो हम मंज़िल मक़सूद तक पहुंच नहीं सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों के जो सवालात हों उनके जवाबात दिए जाएं। फारूक साहब, आप हमारे सामीन व नाज़रीन को बताएं कि आप कौन कौन सी मजहबी शख्सियात मसलन खुतबा से मुतासिर हैं और कौन से खुतबा के खताबात समात फरमाते हैं। अजकल दे दौर विच जेड़ा ना यही कहांगा कि लोगों के ज़्यादातर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारिक कादरी साहब ते सरफराज मुस्तफा साहब इन्हां नूं सुन, दावत इस्लामी इलियास कादरी साहब इन्हां नूं सुन, ठीक है, अच्छे ने। ते रही गल मैं खुद, तो मैं क्योंकि अल्लाह पाक ने फहम फरासत दिता है, शुक्र है मालिक दा, मैं हर मकतबा फ़िक्र नूं सुनना। शिया दे अलामा तालब जोरी साहब, देवबंदियां दे मौलाना तारिक जमील साहब, ते अपने अहले सुन्नत दे जेड़े ने साकरज़ा मुस्तफ़ा साहब हो गए, डॉक्टर तारिक कादरी साहब हो गए, कोकब नूरानी साहब हो गए, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हो गए, ते सैयद हसनैन शाह मदनी हो गए, यह ने जिन्होंने मैं ज़्यादातर सुनना वा। पीर साहब, हमारे सामीन आपसे ये जानना चाहते हैं कि मौजूदा दौर में मुसलमानों के ज़वाल पजीर होने की क्या वजूहात हैं। अब यह कि मुसलमानों के ज़वाल और नुकसान पहुंचने की बड़ी वजह यह है कि हमारी सोच जो है ना वो महदूद होकर रह गई है। हमने सोच को मुक़य्यद कर दिया है। अगर हम किसी आलम फ़कीह असूल परस्त या उस्ताद के पीछे लगे हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि यही ठीक है, बाकी सब गलत है। ये गलत बात है। हमारा दीन, हमारी जुस्तजू करने की जो पावर है, ताकत है, देखने परखने की और तहकीक करने का, तो ये हमें तहकीक करनी चाहिए, लेकिन हम तहकीक नहीं करते। हम सुनी सुनाई पर चलने वाले हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि हम अपने आप को अच्छा कहते हैं और दूसरों को गलत कहते हैं। शिया को हम काफिर कहते हैं, शिया सुन्नियों को काफिर कहते हैं, सुन्नी देवबंदियों को काफिर कहते हैं और देवबंदी वाबियों को काफिर कहते हैं। यानी हम आपस में एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाते हैं। हालांकि क़यामत के दिन हम सब ने एक झंडे के नीचे जमा होना है। कोई शिया सुन्नी देवबंदी वाबी नहीं होगा, वहाँ सिर्फ मुसलमानों का लफ्ज़ होगा। हमारी ये बदबख्ती है कि हम एक दूसरे को जो काफिर कहते हैं, हमने एक दूसरे को दुश्मन बना लिया है, जिसकी वजह से हम ज़वाल और नुकसान उठा रहे हैं। पीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आप दरबार आलिया गौसिया कादरिया गौसिया शहबाजपुर गुजरात पाकिस्तान के सजादा नशीन हैं और दुनिया भर में आपके मुरीदीन की तादाद हज़ारों में है। आप अपने मुरीदीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे। मेरा मुरीदीन के लिए एक पैगाम है कि खुदारा हमें अपनी सोच को मस्बत रखना चाहिए। मोमिन कायना होता है।
अलमोमिन मेरतुलमोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। हमें दूसरों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, हमें अपना आप दुरुस्त करना चाहिए, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी को काफर नहीं कहना चाहिए, किसी पर शिर्क के फतवे नहीं लगाने चाहिए। जब तक कोई जवाज़ हम पास ना हो, हमने अपनी कब्र में जाना है, हमने देखना है कि हम कितने बेहतर हैं। अल्लाह ताला एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से बनी इसराइल की औरत को बख्श सकता है, तो क्या शिया सुन्नी वहाबी को और वहाबी देवबंदी को पानी पिला दो, क्या बख्शा नहीं जाएगा? हम अपनी सोच को क्यों महदूद कर लेते हैं? हमारा दीन मोहब्बत का नाम है, नफ़रत का नहीं। हम नफ़रतें को दूरतें खुद शामिल कर रहे हैं। मेरी अपने मुर्दीन से तलकीन है कि खुदा रहा हर एक से मोहब्बत करो, हर एक के साथ अपना रवैया बेहतर करना पड़ेगा। हम मुसलमान हैं, एक नबी का कलमा पढ़ने वाले। हम एक दूसरे को देखकर माथे पर पसीना क्यों आ जाता है? ये नहीं होना चाहिए, पसीना नहीं आना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। हाँ, अपने साथ नहीं बल्कि दूसरों के साथ भी मोहब्बत का रवैया अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि तलवार की ताकत से ज़ुबान की जो ताकत है ना वो ज़्यादा बड़ी होती है, और ज़ुबान की मिठास जो है ना वो वाली पावर जो है वो किसी कायनात में किसी और शय में नहीं। ईसाइयों, यहूदियों, काफिरों जो भी हैं सबके साथ एक मोहब्बत का रवैया रखना चाहिए। हमारा दीन मोहब्बत करना सिखाता है। अगर मोहब्बत नहीं करेंगे तो हम नुकसान में हैं, हम अपने इस्लाफ के अहकामात से दूर हो जाएंगे। हमें नफ़रत नहीं फैलानी, मोहब्बत करनी है। जितनी मोहब्बत फैलाएंगे अल्लाह ताला हमें उतना ही अरूज अता फरमाएगा। पीर साहब, आखिरी सवाल है कि आपने कौन कौन से ममालिक और मकामात पर दौरे किए हैं और तबलीग के सिलसिले को बढ़ाया और मुसलमानों की रहनुमाई की? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया, इंडिया, मस्कत, दुबई, अबू धाबी, ओमान वगैरह के ममालिक के जो है ना सफ़र कर चुका हूँ। अल्लाह पाक हम सब कामयाब नासिर। पीर फारूक साहब, आपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे नाज़रीन व सामीन के लिए बहुत मालूमाती जानकारी फ़राहम की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन व सामीन, आपने बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू सुना और मेहमान शख्सियतें पीर सैयद फ़ारूक मुहिउद्दीन गिलानी, शहबाजपुरी, गुजरात, पाकिस्तान। समाजियात यूट्यूब चैनल की वीडियोस को देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो के नीचे दी गई घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके।